Dear students, starting with a new chapter. Name of the chapter is capital structure. Let us have an understanding of the learning point of the chapter. Friends, let us visualize that so this is the balance sheet of a company. In that, there are assets in the business. Let us assume that so the assets of that is business is 1 lakh. That consists of the fixed asset, investment, working capital, everything. In order to make investment of 1 lakh rupee in the business, the company is going to raise the funds. Now, जो भी फंड्स कंपनी रेज करने वाली है उसमें कंपनी क्या कर सकता है, कंपनी पूरा का पूरा इक्विटी फाइनेंसिंग से फंड्स ला सकता है, या तो पूरा का पूरा इक्विटी फाइनेंसिंग की जगह वो क्या कर सकता है, लेट अस से दैट से 90,000 इक्विटी फाइनेंसिंग और 10,000 डेट फाइनेंसिंग, या तो फिर क्या कर सकता है 80,000 इक्विटी फाइनेंसिंग 20,000 डेट फाइनेंसिंग, ऐसा कुछ भी से वो डेट फाइनेंसिंग बिजनेस में इंट्रोड्यूस कर सकता है. दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज से द काइंड ऑफ द इंट्रोडक्शन ऑफ द डेट फाइनेंसिंग. ये चैप्टर का लर्निंग पॉइंट क्या है पता है फ्रेंड्स, बहुत ही आसान है. ये चैप्टर का लर्निंग पॉइंट ये है कि हमको जितना भी इन्वेस्टमेंट चाहिए उसमें से कितना अमाउंट का डेट फाइनेंसिंग रखना चाहिए, दैट्स इट. और बैलेंसिंग क्या हो जाएगा, बैलेंसिंग इक्विटी हो जाएगा. देखो नाम क्या है, नाम है कैपिटल. कैपिटल का मतलब क्या, वो 1 लाख रुपए. स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर का मतलब क्या कि कितना डेट फाइनेंसिंग रखने का. So the chapter learning objective, upon completion of this chapter you will be able to define, calculate and explain the significance of the company's financial position and the financial risk of its level of the following ratios: operating gearing, financial gearing and interest gearing. Define the value of the company, explain the relationship between the company's values and the cost of capital, explain the traditional view of the capital structure theory, explain the underlying assumptions of the traditional view of the capital structure theory, interpretation of the graph demonstrating the traditional view of the capital structure theory, यानी कितना डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करने का, explain the assumptions of perfect capital market. तो परफेक्ट कैपिटल मार्केट हमने ऑलरेडी समझा हुआ है, वही का वही चीज हमको यहाँ पे वापस वो लोग करेंगे. इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू ऑल इन्वेस्टर्स, देन देयर इज नो सेंटिमेंटल इन्वेस्टर्स, so everybody wants to maximize the return with the minimization of risk. Describe the views and the assumptions of Modi-Gilani-Miller approach on the capital structure without corporate excess. तो जैसे डिविडेंड इररिलेवेंस थियरी था, कुछ ऐसा यहाँ पे भी है वापस, कि कोई भी कैपिटल स्ट्रक्चर है उसका कोई इम्पैक्ट नहीं आता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल के ऊपर, उसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं आता है वैल्यू ऑफ द फर्म के ऊपर. ये जो लिखा है उन्होंने यहाँ पे कंपनीज का वैल्यू, उसकी बात कर रहे हैं. इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्राफ डेमोन्स्ट्रेटिंग द व्यूज ऑफ द मोदी गिलानी मिलर on the capital structure without corporate tax, अगर टैक्स नहीं है तो. Describe views and assumptions of the MM on the capital structure with corporate taxes. Interpretation of the graph demonstrating the views of the MM on the capital structure with income tax. Identify a range of the capital market imperfections. तो हम लोग मान लेते हैं कि कैपिटल मार्केट परफेक्ट है, पर एक्चुअली ऐसा नहीं है. And describe their impact on the views of the MM on the capital structure. Explain the relation, that is relevance of the picking order theory. Picking order theory हमको ये order बताएगा कि कौन से order में हमको financing raise करना चाहिए. Retained earning, debt financing. That's it.
not equity financing. To selection of the source of finance. Discuss the circumstances under which the WACC can be used in investment appraisal. तो हम लोग कैपिटल बजटिंग का जो डिसीजन मेकिंग करते हैं उस केस में हमको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल का इस्तेमाल कब करना चाहिए. आइडेंटिफाई इन अ सिनेरियो क्वेश्चन whether weighted average cost of capital is appropriate for use by a company. That is what we are going to discuss. Discuss the advantages of the CAPM over WACC. यानी CAPM में क्या होगा, we will be able to say adjust the risk that the individual project has, जबकि WACC में ऐसा नहीं होता है. In determining the project specific cost of capital, अगेन वो बीटा ऑफ अनलीवर्ड इक्विटी जो मैंने आपको बताया था उसकी बात कर रहे हैं. आइडेंटिफाई इन अ सिनेरियो वेयर CAPM may be suitable to determine a project specific cost of equity capital. Apply CAPM in calculating project specific discounting rate. Capital structure theories, उसमें गियरिंग, ऑपरेशनल गियरिंग एंड फाइनेंशियल गियरिंग, लिंक बिटवीन द वैल्यू ऑफ द कंपनी एंड द डिस्काउंटिंग रेट, चूजिंग द डिस्काउंटिंग रेट बेस्ड ऑन वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल बेस्ड ऑन CAPM, यूजिंग CAPM टू फाइंड रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट. रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंटिंग रेट का बहुत आसान एक्सप्लेनेशन है. हम लोग ऐसा समझ सकते हैं डेट से सपोज हमको गवर्नमेंट सिक्योरिटी यानी कि ट्रेजरी बिल का रिटर्न होता है लेट अस से 9%. स्टॉक मार्केट में हमको क्या चाहिए, 9% से ज़्यादा चाहिए. सपोज कि हमको 15% चाहिए. और अगर मैं क्रिप्टो में इन्वेस्ट करूं तो क्रिप्टो में तो और ज़्यादा चाहिए. क्यों? क्योंकि क्रिप्टो का अनसर्टेनिटी है. तो उसमें मुझे कितना रिटर्न चाहिए, मुझे उसमें 20% रिटर्न चाहिए. तो जैसे जैसे रिस्क बढ़ेगा ना वैसे वैसे रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ेगा. Traditional view का theory, and we are going to understand it's the MM without X, MM with X, that is picking order theory, and real time that is life problems. Traditional view भी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं. Let us have a small discussion before we proceed further. Suppose एक कंपनी का पिछले साल का सेल्स था $1 lakh. उनका वेरिएबल कॉस्ट था $60,000, कंट्रीब्यूशन था $40,000, फिक्स कॉस्ट उनका था $30,000 और ऑपरेटिंग इनकम EBIT was $10,000. सपोज ये पिछले साल का सिचुएशन था. The company is expecting an increase in the sales, let us say, by 20%. I want you to write in the chat box that what would be the revised operating income. Please write answer in the chat box. We understand that the sales increases by 20%. तो सेल्स 1 लाख का कितना हो जाएगा, 1,20,000 हो जाएगा. साथ साथ में क्या होगा, वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा. 60,000 क्या हो जाएगा, 72,000 हो जाएगा. We understand that the difference of both of them is a contribution, that is 48,000. फिक्स कॉस्ट में कोई चेंज नहीं होगा, वो 30 का 30 ही रहेगा. तो EBIT क्या हो जाएगा, 18,000 हो जाएगा. That is what we understand. I want you to write in the chat box that say what would be the revised operating income if there is a reduction in sales by 10%. So let us see. Sales अभी कितना है, 1 लाख है. Suppose वो reduce हो जाता है next year, it reduces to 90,000. तो साथ साथ में वेरिएबल कॉस्ट पे रिड्यूस हो जाएगा 54,000. Contribution would be found as a difference of both of them. 90 minus 54, that comes to 36,000.
फिक्स कॉस्ट में कोई भी फर्क नहीं आएगा, वो 30 का 30 रहेगा। ईबीआईटी कितना हो जाएगा, 6000, ऐसा हम लोग समझते हैं। यानी कि हम लोग ऐसा समझ सकते हैं डेट से अगर सेल्स में चेंज आता है, डेट से इट इंक्रीजेस बाय 20%, then operating income increases by 8000, it increases to 18000. So there is a change in the EBIT and percentage change in EBIT. It is 80%. कैसे, 8000 divided by 10,000, जो भी आंसर आएगा into 100 किया जाएगा. And if at all there is a reduction in the sales, there is a reduction in the EBIT by 4000. 10,000 का क्या हो गया, 6000 हो गया. So there is a reduction by 40%. सर ये 40% कहाँ से आया? This 40% is 4000 का रिडक्शन है over 10,000 into 100 for getting answer in percentage term. That is the way it reduces by 40%. Now friends, से कोई कैलकुलेशन तो हो गया, और मुझे अभी आपको एक चीज यहाँ पे समझाना है. Let us say that there is a board meeting going on, or being finance manager, I was representing myself. ये लास्ट ईयर का ऑपरेशन था कंपनी का. एक डायरेक्टर ने पूछा कि सेल्स में इतना इंक्रीज होगा तो ईबीआईटी क्या होगा, तो मैंने ये बोला, एंड मैंने बोला दैट से उसमें 80% का इंक्रीज होगा. एक डायरेक्टर ने पूछा कि अगर सेल्स में रिडक्शन होगा तो क्या होगा, वापस मैंने ये सारा कैलकुलेशन करके बोला दैट से ईबीआईटी में क्या होगा, 40% का रिडक्शन होगा. फिर एक डायरेक्टर ने ऐसा पूछा दैट आई हैव अ क्वेश्चन दैट व्हाई परसेंटेज चेंज इन सेल्स and percentage change in EBIT do not match. Why percentage change in sales and percentage change in EBIT do not match? तो मैं उनको क्या आंसर दे सकता हूँ, क्या बता सकते हो चैट बॉक्स में? So friends, over here the answer of the question is like this, that listen carefully. Percentage change in EBIT is not equal to percentage change in sales due to presence of fixed cost. फिक्स कॉस्ट होने की वजह से ऐसा हो रहा है. देखो, जब हमारा सेल्स बढ़ रहा है ना 20% से, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से ही बढ़ रहा है, पर वहां फिक्स कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है. इसलिए यू गेट एन इंक्रीज so the EBIT at a higher rate. Same is the case when the sales is falling down, variable cost is also falling down, पर फिक्स कॉस्ट में कोई भी रिडक्शन नहीं है, इसलिए EBIT reduces at a higher rate. चलो, प्रोसीडिंग फर्दर टू गिव यू सम मोर एक्सप्लेनेशन. तो मैं मैनेजमेंट को ऐसा की रिपोर्ट बना के दे सकता हूं. So I give you one more explanation over here. Everybody is requested to pay attention. मैं मैनेजमेंट को क्या बता सकता हूँ, पता है? That say we can calculate degree of operating leverage. We can calculate the degree of operating leverage, which is measuring what is the percentage change in EBIT for every 1% change in the revenue. यानी कि सेल्स में 1% का चेंज होगा तो EBIT में कितना चेंज होगा, वो मेजर करने के लिए आई कैन कैलकुलेट फॉर यू DOL.
DOL का कैलकुलेशन किया जा सकता है एज कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। कंट्रीब्यूशन कितना है? कंट्रीब्यूशन इज एन अमाउंट ऑफ ₹40,000 और EBIT कितना है? EBIT है 10,000। So this is 40,000 and this is 10,000. What is final answer? Final answer is 4. In degree of operating leverage कितना है? 4 है। Degree of operating leverage 4 क्या बताता है? That say for every 1% change in the sales, EBIT changes at the rate of 4%. तो देखो ये 20 है, 20 into 4 क्या हुआ? 80। ये 10 है, 10 into 4 क्या हुआ? 40। It means that so the operating income will change 4 times the change in the sales. That is what so the degree of operating leverage is indicating. Leverage जितना ज़्यादा होगा ना, listen carefully, leverage जितना ज़्यादा होगा ना, उतना business पे risk ज़्यादा हो जाएगा। We understand that so the leverage ज़्यादा, तो उसमें क्या होगा? So the potential to increase your income also increases when the sales is increasing, of course, and at the same time potential of the reduction in the income also increases if the sales of the company is falling down. ऐसा हम लोग समझते हैं। So keeping this in the mind, let us read this so the context. Operating gearing, देखो हमको ऑपरेटिंग गियरिंग वर्ड को कैसे समझने का है, उसको ऐसे समझने का है कि हमारा सेल्स जब 1 लाख है तब हमारा प्रॉफिट है 10,000, यानी हमारा टोटल कॉस्ट कितना है? हमारा टोटल कॉस्ट है 90,000। ये 90,000 के टोटल कॉस्ट में से क्या बोला सर आपने? ये 90,000 के टोटल कॉस्ट में से जितना प्रपोर्शन फिक्स्ड कॉस्ट है ना, उसको गियरिंग बोला जाता है, उसको लीवरिंग बोला जाता है। दैट इज द टेक्निकल वर्ड दैट वी हैव। So let us read this, that is the content. Operating gearing is a measure of the extent to which firms' operating costs are fixed rather than variable. Fixed cost is considered to be two-way squad, है ना? अगर मेरे पास तलवार है तो मैं सामने वाले को मारूंगा तो वो मर जाएगा, उसको मारने में सपोज कि मुझे लग गया तो मुझे चोट लगेगी। सो इट इज टू वे स्क्वाड, ऐसा इसका मतलब है। फिक्स कॉस्ट की वजह से क्या होगा? सेल्स बढ़ेगा तो बहुत हम लोग खुश है, क्यों? क्योंकि ये कॉस्ट नहीं बढ़ रहा है। सो अवर प्रॉफिट इंक्रीजेस एट अ हायर रेट। पर जब हमारा सेल्स रिड्यूस हो रहा है तो हमारा प्रॉफिट है ना रैपिडली रिड्यूस हो रहा है, क्यों? क्योंकि वापस ये फिक्स कॉस्ट रिड्यूस नहीं हो रहा है। ऑपरेटिंग gearing is a measure of the extent to which firms' operating costs are fixed rather than variable, as this affects the level of the business risk of the firm. Operating gearing can be measured in number of the different ways, including, देखो उन्होंने यहाँ पे दे रखा है contribution upon EBIT, इसको बोला जाता है DOL, that is degree of operating leverage, that is percentage change in EBIT अपॉन परसेंटेज चेंज इन द रेवेन्यू। तो देखो मैं जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, इट इज 4, कैसे? कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। एट द सेम टाइम देखो परसेंटेज चेंज इन EBIT 80% अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स 20%, तो 4। नेगेटिव 40% डिवाइडेड बाय नेगेटिव 10%, 4। इट इज फिक्स कॉस्ट अपॉन वेरिएबल कॉस्ट और द फिक्स कॉस्ट अपॉन टोटल कॉस्ट, ऐसे भी उसको मेजर किया जा सकता है। यानी कितना फिक्स कॉस्ट इन प्रोपोर्शन टू द वेरिएबल और टोटल कॉस्ट में से कितना फिक्स कॉस्ट है। फर्म्स विथ हाई प्रोपोर्शन ऑफ द फिक्स कॉस्ट इन देयर कॉस्ट स्ट्रक्चर आर नोन एज हैविंग हाई ऑपरेटिंग गियरिंग। तो देखो फ्रेंड्स, आप लोगों ने अभी रिसेंटली ऐसा देखा ही होगा कि कोविड की वजह से number of businesses have really liquidated, क्यों? क्योंकि फिक्स कॉस्ट के बर्डन की वजह से। Thus if the sales of the company vary, the greater the operating gearing
द ग्रेटर द ऑपरेटिंग इनकम वेरिएबिलिटी है। जितना लिवरेज ज्यादा होगा ना, इसको लिवरेज भी बोला जाता है टेक्निकल लैंग्वेज में, DOL, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज। जितना ऑपरेटिंग लिवरेज ज्यादा होगा ना, उतना क्या होगा, आपका EBIT में वेरिएशन ज्यादा आएगा। और देखो वेरिएशन दोनों साइड आ सकता है, पॉजिटिव साइड और नेगेटिव साइड। द लेवल ऑफ द ऑपरेटिंग गियरिंग विल बी लार्जली a result of the industry in which the firm operates. Test your understanding one. Two firms have the following cost structure. मिलियन टर्म में दे रखा है वैल्यूज, 5 मिलियन सेल्स है, 3 मिलियन वेरिएबल कॉस्ट है, तो कंट्रीब्यूशन कितना होगा, 2। फिक्स कॉस्ट 1 है, यानी ऑपरेटिंग इनकम 1 है। दिस इज 4, 3, 1। What level of the operating gearing in each, and what would be the impact on each 10% increase in the sales? तो देखो हम लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि ए कंपनी का डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज is contribution upon EBIT, company A and company B, wherein we understand that the company A का 5 minus 3 that is 2, so 5 minus 3 upon 1, 5 minus 3 कितना आएगा, 2, 2 upon 1 कितना आएगा, 1। बी कंपनी में इट इज 5 minus 1 यानी कि 4, 4 upon again 1, so 4 upon 1 it is 4। तो कंपनी ए में रिस्क कम है, कंपनी बी में रिस्क ज्यादा है। फिर हमको दे रखा है डेट से सेल्स बढ़ेगा कितने से, 10% से। तो कंपनी ए का सेल्स हो जाएगा 5.5, वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगा 3.3, कंट्रीब्यूशन हो जाएगा 2.2, फिक्स कॉस्ट हो जाएगा 1 और EBIT हो जाएगा 1.2। है देखो सेल्स 10% से बढ़ा, यस, और सॉरी हाँ ये 2 है, तो सेल्स 10% से बढ़ा तो 10 इंटू 2 20% से EBIT बढ़ेगा। अभी का EBIT कितना है, 1 मिलियन प्लस 20%, और उधर क्या होगा 5.5, 1.1, difference of both of them is 4.4, this is again 1, this is 3.4। तो अभी का कितना है EBIT, इट इज 1, 1 का कितना हो जाएगा, 3.4 हो जाएगा। सो 3.4 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 इंटू 100 यानी कितना हो जाएगा, 240% हो जाएगा। वन प्लस 240%। एक मिनट, फिक्स कॉस्ट यहाँ पे 3 है, so this is 1.4, so 1 plus 40%, 1.4 million हो जाएगा। So we understand that so the revised operating income is 1.20 and 1.40। तो हम लोग इस हिसाब से लिवरेज का कैलकुलेशन कर सकते हैं एंड वी कैन गिव आंसर।
फाइनेंशियल गियरिंग, राइट ऑन दिस आंसर अगर आपका लिखने का बाकी है तो। फाइनेंशियल गियरिंग, फाइनेंशियल गियरिंग रेशियोज। तो देखो जैसे मैंने आपको चैप्टर का शुरुआत में ही बोला था कि ये चैप्टर में हमको ये लर्न करना है सेट से कितना प्रोपोर्शन ऑफ द डेट फाइनेंसिंग कैपिटल स्ट्रक्चर में होना चाहिए। सो देयर आर सर्टेन रेशियोज दैट से यू कैन कंप्यूट इन ऑर्डर टू मेजर दैट से कितना डेट फाइनेंसिंग है। Let us have say some discussion before we proceed further. सपोज एक कंपनी है जिसमें टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख डॉलर होने वाला है। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड 5 लाख होने वाला है। उसका ऑपरेटिंग इनकम 1 लाख डॉलर होगा। कितना? 1 लाख डॉलर। कंपनी ऐसा सोच रही है, लेट अस कीप नो डेट फाइनेंसिंग और कीप डेट फाइनेंसिंग ऑफ 3 lakhs। दोनों सिचुएशन में रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होगा वो थोड़ा हम लोग डिस्कस करते हैं। देखो ईबीआईटी कितना है? 1 लाख। यहां पे भी कितना है? 1 लाख। इंटरेस्ट, सपोज ये डेट फाइनेंसिंग का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 12%। सो 3 लाख का 12% कितना आएगा? 36,000। अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितना है? 1 लाख। यहाँ पे अर्निंग बिफोर टैक्सेस कितना है? 64,000। इनकम टैक्स का रेट है 40%। सो टैक्स आएगा 40,000। 64,000 इंटू 0.4, टैक्स आएगा 25,600। अर्निंग आफ्टर टैक्सेस 60,000। 64,000 minus 25,600, that is 38,400. रिटर्न ऑन इक्विटी, फर्स्ट केस में क्या होगा? वी अंडरस्टैंड दैट से अगर डेट फाइनेंसिंग नहीं है तो पूरा का पूरा 5 लाख इक्विटी से फाइनेंस हो गया। तो 60,000 डिवाइडेड बाय 5 lakhs into 100, तो क्या होगा? 12%। बाद में क्या होगा? रिटर्न ऑन इक्विटी में 38,400 डिवाइडेड बाय, देखो डेट फाइनेंसिंग 3 लाख का है तो इक्विटी कितना हुआ? 2 लाख। रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो जाएगा? रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 19.2। यानी फ्रेंड्स हम लोग क्या समझ सकते हैं? हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि एक ही सिचुएशन में अगर डेट फाइनेंसिंग है तो रिटर्न हो जाएगा 19.2, और अगर डेट फाइनेंसिंग नहीं है तो रिटर्न हो जाएगा सिर्फ 12%। कमिंग बैक टू द पॉइंट, तो ये जो है ना, दिस इज व्हाट वी अंडरस्टैंड इज द ग्रेट एडवांटेज, जिसको टेक्निकली बोला जाता है से द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी एडवांटेज। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का एडवांटेज किसको मिलता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स को मिलता है, जिसकी वजह से रिटर्न ऑन इक्विटी इंक्रीजेस ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ द डेट फाइनेंसिंग। हम लोग कुछ ऐसा समझ सकते हैं सिर्फ लाइक समझने के लिए, जो 12% का डेट फाइनेंसिंग है उसका बेसिकली कॉस्ट कितना है? 12 इंटू 0.6, यानी 7.2% उसका कॉस्ट है।
हम लोग 1 लाख रुपए कमाते हैं ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 5 lakhs. सो 1 लाख डिवाइडेड बाय 5 lakhs. सो रेट ऑफ अर्निंग हो गया हमारा 20% इंटू 0.6, तो पोस्ट टैक्स हो गया 12%. देखो 12% हम लोग कमाते हैं, डेट फाइनेंसिंग का कॉस्ट 8.4 है. सो डेट फाइनेंसिंग की वजह से 3.6% का फायदा होता है. तो 3 लाख इंटू 3.6%, यानी डेट फाइनेंसिंग की वजह से 10,800 का इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा होता है. सर कैसे 10,800? देखो 3 लाख का डेट फाइनेंसिंग रेज किया, उसका खर्चा 8.4 है और हम लोग कमाते हैं 12% बिजनेस में से, तो इसके ऊपर हम लोग 3.6% कमाते हैं 10.8. अच्छा, हमारा खुद का फाइनेंसिंग 2 लाख रुपए का है ना, इक्विटी शेयर होल्डर्स का, उसके ऊपर 12% कमाते हैं, उसमें तो किसी को देने का ही नहीं है. सो प्लस 24,000. I repeat my explanation. There is a calculation error on my end. देखो कॉस्ट ऑफ डेट फाइनेंसिंग कितना है? इट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, यानी 12% इंटू 1 माइनस 0.4. सो 12% इंटू 0.6, 7.2. हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना है? इट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस इंटू 1 माइनस टी डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड. अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस है 1 लाख इंटू 1 माइनस 0.4 डिवाइडेड बाय टोटल एम्प्लॉयमेंट ऑफ द फंड्स कितना है? 5 लाख. दैट इज जस्ट कैपिटल एम्प्लॉयड. यानी हम लोग कमाते कितना? 60,000 ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हाट? 5 lakhs. यानी कंपनी का रेट ऑफ अर्निंग कितना हुआ? 5 लाख का. जब हमने डेट फाइनेंसिंग रेज किया तो ये 5 लाख के ऊपर क्या होगा? 5 लाख का बाइफर्गेशन होगा. डेट फाइनेंसिंग एंड इक्विटी फाइनेंसिंग. डेट फाइनेंसिंग कितना है? 3 लाख का. उसके ऊपर हम लोग कमाएंगे कितना? कमाएंगे 12%. ये रहा 12%. उसका खर्चा कितना है? 7.2%. सो 12 माइनस 7.2, 4.8% कमाते हैं एक्स्ट्रा. सो 3 लाख इंटू 4.8%, हम लोग कितना कमाएंगे डेट फाइनेंसिंग के कंपोनेंट के ऊपर? 14,400. और इक्विटी फाइनेंसिंग कितना है? 2 लाख. उसके ऊपर हम लोग कितना कमाते हैं? 12%. यानी हम लोग कितना कमाते हैं? 24,000. सो कुल मिला के कितना हो जाता है? कुल मिला के इक्विटी शेयर होल्डर्स का अर्निंग हो जाता है 14,400 प्लस 24,000. दैट कम्स टू 38,400. सो 38,400 का अर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 lakhs. एंड रिटर्न ऑन इक्विटी कितना हो जाएगा? रिटर्न ऑन इक्विटी हो जाएगा 19.2%. This is the way the equity shareholders gain a higher rate of return due to the advantage of trading on equity. Trading on equity. मैं आप लोगों को क्या समझाना चाहता हूं कि डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करने का ये एक इंपॉर्टेंट फायदा है क्या? That so the equity shareholders will be able to increase the return. So importantly, I want to give an explanation to all of you friends is that बाहर का फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करने की वजह से इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा होता है. इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या फायदा होता है? इक्विटी शेयर होल्डर्स का रिटर्न बैठे बैठे ही इंक्रीज हो जाता है. पूरा डेट फाइनेंसिंग होता तो उनका रिटर्न कितना होता? सिर्फ 19.2, पर उसकी जगह कितना हो जाता है? 9, I'm sorry,
सिर्फ इक्विटी फाइनेंसिंग होता तो रिटर्न क्या होता 12%। बाहर का फाइनेंसिंग होने की वजह से उनका रिटर्न क्या हो जाता है 19.2। तो डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करने का ये सबसे बड़ा फायदा है। किसको? इक्विटी शेयर होल्डर्स को। इक्विटी शेयर होल्डर्स को भी ये मालूम है, यानी कि प्रमोटर्स को। पर उसके साथ सबसे बड़ा जो रिस्क है ना वो ये है, लेट्स से जब भी आप डेट फाइनेंसिंग रेज करते हो, यू हैव अ फिक्स्ड कमिटमेंट फॉर मेकिंग पेमेंट ऑफ द फाइनेंशियल चार्जेस, एंड देयर आर लॉट ऑफ अनसर्टेनिटीज इन द बिजनेस। ये अनसर्टेनिटीज की वजह से ये जो ऑपरेटिंग इनकम है ना उसमें फ्लक्चुएशन आता है। उसमें जब फ्लक्चुएशन आता है ना तो उसमें डेफिनेटली ऐसा पॉसिबल है दैट से इन any year you may not be able to earn even enough to make the payment of the financial charges। ये उसका consequences है। इसलिए क्या कहा जाता है, whenever you raise the debt financing say there is a debt risk, और उसकी वजह से क्या होगा, say there is a possibility that say your company may go into the liquidation। अब कोई भी कंपनी देख लो जो लिक्विडेशन में गया है, वो किसकी वजह से गया है? मोस्ट ऑफ द रीजन इज से द डेट फाइनेंसिंग दैट इट हैज इंट्रोड्यूस, क्योंकि डेट फाइनेंसर्स आपका कंपनी बंद करवा देंगे अगर आपने उनको पेमेंट नहीं किया। इसलिए सर द प्रोपोर्शन ऑफ द डेट फाइनेंसिंग इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू केयरफुली ऑब्जर्व। सो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स इन द माइंड, हम लोग अभी ये पढ़ते हैं फाइनेंशियल गियरिंग। फाइनेंशियल गियरिंग का मतलब क्या समझने का, कि जितना भी हमको पैसा चाहिए उसमें से डेट फाइनेंसिंग कितना रखेंगे, उसको फाइनेंशियल गियरिंग बोलेंगे। इज अ मेजर टू द एक्सटेंट टू विच द डेट इज यूज्ड इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। नोट द प्रेफरेंस शेयर्स आर यूजुअली ट्रीटेड एज द डेट फॉर गियरिंग कैलकुलेशन। सी द चैप्टर ऑफ द सोर्सेस ऑफ द फाइनेंस फॉर द लॉजिक बिहाइंड इट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मोस्ट ऑफ द केस में कुछ एक्सेप्शंस है, बट मोस्ट ऑफ द केस में प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बाहर वाला ही माना जाता है। उनका बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऐसा है कि उनका जो पेमेंट होता है ना वो फिक्स रेट से होता है। दूसरा क्या होता है, दे आर सपोज टू बी रिडीम्ड से एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो उनका जो फीचर है ना इट इज मोर रिजेंबलिंग टू द डेट इंस्टेड ऑफ इक्विटी। I don't know that say you might have studied something like, or you might have heard about a financial break-even point concept। उसमें क्या होता है, इंटरेस्ट प्लस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय 1 माइनस टी। ऐसा करके वी फाइंड अ लेवल ऑफ द ऑपरेटिंग इनकम एट विच द ईपीएस इज जीरो, दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। उसमें भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को बाहर वाला भी माना गया है। इट कैन बी मेजर्ड इन अ नंबर ऑफ वेज। तो हम लोग ये डेट फाइनेंसिंग का इंट्रोडक्शन कैसे कैसे मेजर कर सकते हैं वो उन्होंने यहाँ पे बताया है। एक, लॉन्ग टर्म डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड द रिजर्व्स, दैट इज कॉल्ड इक्विटी गियरिंग। उसके बाद लॉन्ग टर्म डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय लॉन्ग टर्म कैपिटल। सपोज कि लॉन्ग टर्म डेट है 1 लाख, प्रेफरेंशियल कैपिटल है 2 लाख, रिजर्व्स एंड सरप्लस है 3 लाख, इक्विटी शेयर कैपिटल है 5 लाख। सो 1 + 2 + 3 + 5 टोटल इज 11। नाउ देखो पहला क्या दे रखा है, लॉन्ग टर्म डेट प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल डिवाइडेड बाय ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड रिजर्व्स। यानी क्या किया जाएगा फ्रेंड्स, इन दोनों का टोटल डिवाइडेड बाय इन दोनों का टोटल। यानी क्या करने का, 3/8, 3/8 राइट। दूसरे में क्या करने का, लॉन्ग टर्म डेट प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डिवाइडेड बाय टोटल लॉन्ग टर्म डेट, टोटल लॉन्ग टर्म फंड्स, यानी 3/11, 27.27। Interest gearing, it is the interest
upon EBIT. So it is reciprocal value of the, I don't know whether you have heard or not, interest coverage ratio. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसे होता है? EBIT अपॉन इंटरेस्ट. सपोज की EBIT है 5 लाख और इंटरेस्ट है 1 लाख, तो कवरेज रेशियो क्या हो गया? 5 टाइम्स. इसका मतलब क्या? $1 का इंटरेस्ट पे करने के लिए, $1 का इंटरेस्ट पे करने के लिए मेरे पास $5 का ऑपरेटिंग इनकम है. इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा होगा ना, दैट इंडिकेट्स दैट से यू आर हैविंग से द साउंड फाइनेंशियल पोजीशन. लोअर द कवरेज रेशियो, उसका मतलब क्या हुआ? दैट से आपके पास सदा you have the fixed burden more in comparison to the earning that you have. उसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल लैंग्वेज में, that say you have say the weak financial position. That is what we understand. Suppose कि after passing my say the professional examination, I join a job जिसपे मेरा सैलरी है फॉर एग्जाम्पल $1 लाख. फिर मेरे पास घर नहीं था तो मैंने घर लिया, मेरे पास गाड़ी नहीं था तो मैंने गाड़ी लिया, मेरे पास हाउस होल्ड इक्विपमेंट नहीं थे, मैंने वो लिए. ऐसा करते 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 मैंने सब लोन पे लिया और मेरा EMI कितना है? मेरा EMI है 70,000. तो 70,000 का EMI है और मेरा अर्निंग है 1 लाख. तो मेरे लिए भी ये जॉब बहुत ही इंपॉर्टेंट है. अगर मैं ये जॉब छोड़ दूंगा तो ये EMI कैसे भर पाऊंगा? That is what we understand is an example of the gearing. तो ये जो 5 टाइम्स है ना, that is called the coverage ratio. उसका उन्होंने यहाँ पे रेसिप्रोकल वैल्यू बोला है. रेसिप्रोकल वैल्यू का मतलब क्या था? उसका रिवर्स वैल्यू 1/5. Since preferences are treated as debt financing, preference dividend are treated as the debt interest in this ratio. तो उसको भी यहाँ पे हमको ऐड कर देने का है. All the three ratios measure the same thing, but for comparison purpose the same ratio must be used consistently. यानी ऑफ कोर्स हम लोग अगर दो कंपनी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं तो दोनों में हमको सेम टाइप का रेशियो ही इस्तेमाल करना है. कैपिटल गियरिंग, डेट अपॉन डेट प्लस इक्विटी, यानी जो हमने समझा था डेट प्लस प्रेफरेंशियल कैपिटल डिवाइड बाय टोटल, यूज मोर ऑफन देन इक्विटी गियरिंग. तो इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है. तो यहां पे क्या होगा? 3/11 ऐसा. इंटरेस्ट गियरिंग इज अ स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस मेजर. जैसे मैंने बोला आपको P&L से फिगर लेके आते हैं, rather than the financial position statement में, न कि बैलेंस शीट में से. It considers a percentage of the operating profit absorbed by the interest payment of the borrowing as a result of the measure of the impact of the gearing on the profit. It is more normally seen in its inverse form, जैसा भी मैंने बताया, as interest coverage ratio. See in the later chapter of the ratio analysis. Interest coverage ratio बहुत ही पॉपुलर रेशियो है. कभी भी कोई भी बैंक से अगर आप हम लोग लोन मांगते हैं ना, तो वो हमेशा दो रेशियोज का कैलकुलेशन करेंगे. एक इंटरेस्ट कवरेज रेशियो और दूसरा DSCR, डेट सर्विस कवरेज रेशियो. स्टेटमेंट ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ रेड कैप कंपनी. नॉन करंट एसेट्स दे रखा है 23 मिलियन का, करंट एसेट्स दे रखा है 15 मिलियन का, टोटल एसेट दे रखा है 38 मिलियन का. इक्विटी एंड द लायबिलिटीज दे रखा है हमको. इक्विटी शेयर कैपिटल है 10 का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 3 का, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है 1.5 का, रिजर्व है 2.5 का. So the total of all of them is say 17. 10 plus 3 plus 1.5 plus 2.5. Highlight this portion, preference share capital. Loan notes 8. Current liability में creditors, trade payables, OD, equity and the liabilities. Calculate the equity gearing
and the capital gearing of the business? That is the question. So I request all of you to go through the question. So write on heading calculation of equity gearing. In that, let us understand equity gearing. In that, debt plus preferential capital divided by equity share capital plus reserves and surplus. डेट पे हम लोग लिखेंगे 8 and 1.5. divided by equity share capital 10 plus 3 plus 2.5. like this. So numerator is 9.5 divided by so 10 plus 3 plus 2.5, so it is 15.5. That comes to 0.6129. That is what we understand. Next क्वेश्चन में दे रखा है इक्विटी गियरिंग एंड कैपिटल गियरिंग ऑफ द बिजनेस. नेक्स्ट कैलकुलेशन ऑफ capital gearing. In that, debt plus preference share capital divided by debt plus preference share capital plus equity plus reserves and surplus. So total और capital gearing. न्यूमरेटर क्या आएगा? सिर्फ डेट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आएगा और डिवीजन में क्या आएगा? सब कुछ आएगा. That is what we understand. So the numerator is 9.5, डिवीजन में 9.5 plus 15.5. So the total is 25. That is 38%. Next, nominal or market value. The ratios can be calculated using either the nominal value, जिसको हम लोग book value भी बोला जा सकता है, or the market value of the debt and equity. There are arguments in the favor of both approaches. Market value are more relevant to the level of the investment made, represents the opportunity cost of the investment made, are consistent with the way the investors measure the debt and equity. Nominal values are how imposed gearing restriction are often expressed. Imposed gearing restrictions का मतलब क्या है कि जब भी मैं कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेता हूँ, उन लोगों का ऐसा एक कंडीशन है कि आपका डेट इक्विटी रेशियो इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए. तो वो वैल्यू का जो कोवेनेंट होता है ना फ्रेंड्स, दैट कोवेनेंट इज बेस्ड ऑन द बुक वैल्यू.
and not subject to the sudden change due to market factors. This is again which is important. The price of the equity share, price of the debenture, उसमें फ्लक्चुएशन आता है, इक्विटी में बहुत ज़्यादा, डेट में कंपेरेटिवली कम. हाउएवर से बुक वैल्यू में कोई भी ऐसा सडन चेंज नहीं आएगा, और दे आर रेडीली अवेलेबल एंड इट इज़ नॉट इजीली मैनिपुलेटिव. वो मार्केट वैल्यू में तो बहुत मैनिपुलेशन का भी स्कोप है. Impact of the financial gearing, where the two companies have the same variability in the earning, the company with the high level of the financial gearing will have the increased variability in the return to the shareholders. ऐसा वो लोगों का कहना है. Again, I give you a small example like this. Suppose एक कंपनी का EBIT है, let us say 60,000. It is required to pay interest of 40,000. Earning before taxes is 20,000. Income tax का रेट है 40%. Earning after taxes is 12,000. सपोज की प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं है, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर है 1200 और ईपीएस है 10. ईबीआईटी में सपोज दैट देयर इज एन इंक्रीज बाय 20%. तो क्या होगा, ये 72,000 हो जाएगा, ये 40,000 का 40 ही रहेगा, ये 32,000 हो जाएगा, 32,000 का 40%, this will be 12,800. 32 minus 10,800, sorry, 12,800, 19,200. Divided by 1,200. EPS is 16. Suppose EBIT reduces by 10%. This is 54,000. This is 40,000. This is 14,000. 5,600. 8,400. So the EPS will be 7. यानी हम लोग ऐसा समझ सकते हैं कि जो भी हमारा EPS है वो 6 रुपये से बढ़ा या 60% से बढ़ा, 3 रुपये से कम हुआ या 30% से कम हुआ. तो इसको है ना फ्रेंड्स मेजर किया जा सकता है. दैट इज अगेन सेम स्टोरी है. परसेंटेज चेंज इन EPS, क्या बोला मैंने, परसेंटेज चेंज इन EPS does not match with the percentage change in EBIT due to the fact that interest is going to remain same. Percentage change in EBIT is not equal to percentage change in EPS. Why? Because say there is fixed financial charges in form of interest. That is the reason. और यहाँ पे फ्रेंड्स एक टेक्निकल टर्म है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज मेजर्स द सेम. डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज का कैलकुलेशन किया जाता है एज EBIT अपॉन EBT. इट इज कैलकुलेटेड एज EBIT अपॉन EBT. देखो EBIT अभी कितना है 60,000, EBT कितना है 20,000. So 60,000 divided by 20,000. आंसर कितना आएगा, आंसर आएगा 3. ये 3 क्या बताता है, लिसन केयरफुली. अगर EBIT में 1% का इंक्रीज है तो EPS में 3% का इंक्रीज होगा. अगर EBIT में 1% का रिडक्शन है तो EPS में 3% का रिडक्शन होगा. ये 3 बताता है. तो देखो ये 20% से बढ़ा, सो 20 into 3 क्या होगा, ये 60% से बढ़ा.
ये 10% से रिड्यूस हुआ, सो 10% इंटू 3 क्या होगा, ये 30% से रिड्यूस हुआ। ना ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव यू एन एक्सप्लेनेशन कि जब भी हम लोग डेट फाइनेंसिंग इंट्रोड्यूस करते हैं ना, उसका इफेक्ट क्या आता है। इंट्रोडक्शन ऑफ द डेट फाइनेंसिंग मे वर्क फेवरेबली फॉर यू, इट मे वर्क अनफेवरेबली फॉर यू। क्यों, क्योंकि जो इंटरेस्ट का अमाउंट है ना फ्रेंड्स वो सेम है, दैट इज द रीजन। Now keeping these things in the mind, let us understand this question. Test your understanding 3. Calculate the impact on the firm C of 10% fall in the sales and comment on your result. तो सेल्स अभी का कितना है, इट इज 10,000, 10,000 का कितना हो जाएगा 9,000, वेरिएबल कॉस्ट 1,800 हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस है कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन विल बी 7,200, फिक्स कॉस्ट है 5,000 एंड दिस विल बी 2,200, इंटरेस्ट है 2,000, सो प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस हो जाएगा 200। That is the way the profit before taxes is calculated. So we understand that say over here, so this reduces. अच्छा देखो, अभी मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूँ, अभी ऐसा कुछ करने का जरूरत नहीं है। पर देखो, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितना है 8,000, ठीक है ना, दिस इज 8, दिस इज 3, सो यूज योर कैलकुलेटर, 8,000 अपॉन 3,000, आंसर क्या है 2.66666, ठीक है ना। नहीं देखो, सेल्स में क्या हुआ, 10% का गिरावट है, सो 10 इंटू 2.66666 यानी क्या हुआ 26.67% का रिडक्शन है। अच्छा, अभी का ईपीआईटी कितना है 3,000 है, तो देखो यूज कैलकुलेटर, 3,000 माइनस 26.666666 परसेंटेज यानी कितना 800 रुपये का रिडक्शन हुआ, यानी देखो 2,200 हो गया। अच्छा, दूसरा जो मैंने आपको बताया रिसेंटली, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, वो कैसे होता है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, कितना आंसर है 3, है ना, पता ही चल जाता है, दैट इज 3, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। नाउ हम लोग ऐसा समझ सकते हैं, लिसन केयरफुली, 800 अपॉन 3,000, अभी का रिडक्शन कितना है, ये है 26.67%। तो देखो 26.67% इंटू क्या करेंगे 3, तो ये 80% से रिड्यूस हो जाएगा। तो देखो हम लोग समझ सकते हैं 1,000 माइनस 80% कितना आ गया 200 हो गया। अब वन मोर स्मॉल क्लैरिफिकेशन, क्वेश्चन में हमको दे रखा है दैट से द सेल्स फॉल्स बाय 10%, इसलिए मैंने ये 10,000 का 10% कम यानी कि 9,000 लिया, और ये वेरिएबल कॉस्ट 2,000 है ना, उसका 10% कम यानी 1,800 लिया, और इन दोनों का डिफरेंस क्या होता है, इन दोनों का डिफरेंस होता है कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, ओवरऑल therefore there is a required trade off between, ट्रेड ऑफ का मतलब क्या, फायदे नुकसान को हमको मेजर करना है। बिजनेस रिस्क एसोसिएटेड विद competing in the marketplace, बिजनेस रिस्क में क्या होता है, वी compete in the market। financial gearing caused by the proportion of the debt in the capital structure, operating gearing caused by the proportion of the costs that are fixed। तो टेक्निकली फ्रेंड्स इसको मेजर किया जाता है यूजिंग डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लिवरेज, इसको मेजर किया जाता है डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लिवरेज, जो मैंने अभी आपको बताया DFL, दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड। और इन दोनों का जो टोटल होता है ना, उसको डिग्री ऑफ कंबाइंड लिवरेज बोला जाता है। इट इज अ फाइनेंशियल मैनेजर्स रोल टू बैलेंस those different risk factors to ensure
that the overall risk faced by the equity shareholder is acceptable. यानी बहुत ही इंपॉर्टेंटली उन्होंने क्या बोला कि भाई हमको रिस्क इस हिसाब से बैलेंस करना है कि जो इक्विटी शेयरहोल्डर सहन कर पाए. हमको बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक होके ज्यादा लेवरेज इंट्रोड्यूस नहीं करना है, नहीं तो क्या हो सकता है जो साल कंपनी का अच्छा नहीं रहा ना, कंपनी तुरंत बंद हो जाएगा. हमको बहुत कंजर्वेटिव रह के कुछ भी डेट इंट्रोड्यूस नहीं किया, कुछ भी फिक्स कॉस्ट इंट्रोड्यूस नहीं किया, ऐसा भी नहीं रखना है. हमको बेसिकली क्या करना है कि जो भी मार्केट में चल रहा है, जो भी इंडस्ट्री में चल रहा है ना, उससे थोड़ा ऊपर नीचे हमको फिक्स कॉस्ट हमारे बिजनेस में रखना है. दोनों फिक्स कॉस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस के फिक्स कॉस्ट की एज वेल एज से द फाइनेंशियल फिक्स कॉस्ट की. It is the level of the overall risk that will determine the rate of return and equity shareholder demands. In reality, there is little that the financial manager can do to alter the business risk, and there may only be limited opportunities for altering operating gearing. Example, a service organization may have mostly the fixed cost by nature. It is therefore the risk associated with how the company is financed that is most easily controlled. यानी कई बार क्या होता है, डेट से बिजनेस ही ऐसा है कि जिसमें आपको इतना रिस्क तो लेना ही पड़ेगा. नहीं, दैट केस से जो रिस्क आप कंट्रोल कर सकते हो, से वो रिस्क आपको कंट्रोल करने का. A firm must consider the volatility it cannot avoid and ensure that the gearing decision it takes avoid increasing risk to an unacceptable level. यानी कि जितना रिस्क हमको लेना ही पड़े, चॉइस ही नहीं है, तो उतना ले लेने का, बाकी का रिस्क हमको हो सके वहां तक रिड्यूस करने का, लुकिंग टू से द अदर थिंग्स. नेक्स्ट, एन ऑप्टिमल कैपिटल स्ट्रक्चर, कंपनी वैल्यू एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल. द ऑब्जेक्टिव ऑफ द मैनेजमेंट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयरहोल्डर्स. If altering the gearing ratio, the extent to which the debt is used in the finance, that is financial structure, है ना. आप लोग देख सकते हो कि शुरुआत से लोग हमको यही समझाने का ट्राई कर रहे हैं. Could increase the wealth, then finance manager would have a duty to do so. तो फ्रेंड्स, हमने जैसे डिस्कस आगे भी किया है, लेट्स से आपका और मेरा से we have a conversation with a single intention, that say you pass your examination successfully with good marks. There is no other intention with which either I meet you or you meet me. Similarly, से the financial management का भी बहुत ही clear है fundamental, that से हमको कुछ ऐसा करना है कि जिसकी वजह से wealth of equity shareholders बढ़े, price of equity shares increase हो, यही उनका कहना है. तो यहाँ पे बेसिकली इनका कहना ऐसा है कि हम लोग हमारा कैपिटल स्ट्रक्चर ऑल्टर करके अगर वेल्थ बढ़ा सकते हैं, तो वो करने का फाइनेंस मैनेजर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है. वो हमको यहाँ पे लोग समझा रहे हैं.